ایک انوکھی مشکل۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں رہتے تھے عامر صاحب اور ان کی بیگم کرن۔ عامر صاحب کا شہر میں اپنا ایک اچھا خاصا کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا۔ اللہ نے انہیں 3 بیٹیوں آمنہ، بشرا، اقرا اور ایک لاڈلے بیٹے عبداللہ سے نوازا تھا۔ چاروں بہن بھائیوں میں بے حد پیار تھا۔ آمنہ سب سے بڑی تھی، جو بہت ہی پروفیشنل اور دماغ کی تیز تھی۔ اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن کی پڑھائی کی تھی۔ اقرا سب سے چھوٹی اور بہت شرارتی تھی، جسے فوٹوگرافی اور ولاگنگ کا جنون تھا۔ اور بیچ والی تھی بشرا، جو پورے گھر کی جان تھی۔ بشرا بہت ہی ویل مینرڈ، چپ چپ رہنے والی اور رحم دل لڑکی تھی، جو ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اور ان سب کا لاڈلا تھا عبداللہ، جو ابھی یونیورسٹی میں کمپیوٹر پروجیکٹس پر کام کر رہا تھا۔ تینوں بہنیں اپنے بھائی پر جان چھڑکتی تھیں۔ ایک دن ناشتے کے دسترخوان پر عبداللہ نے کہا، پاپا، میں اپنی ایک ٹیک کمپنی کھولنا چاہتا ہوں، جہاں ہم شہر کی سیکیورٹی اور ڈیجیٹل سسٹمز بنائیں گے۔ عامر صاحب نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، تم قدم بڑھاؤ، تمہارا باپ اور تمہاری بہنیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ عبداللہ کے اس بڑے پروجیکٹ میں اس کے ساتھ اس کی یونیورسٹی کی 3 سب سے قابل اور گہری دوستیں شامل تھیں۔ وانیہ، مرہا اور حفصہ نور۔ وانیہ سافٹ ویئر ڈیزائن کی ایکسپرٹ تھی، جو گھنٹوں لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر نئے ڈیجیٹل ٹولز بناتی تھی۔ مرہا پروجیکٹ مینیجر تھی، جس کا دماغ پلاننگ اور لوگوں سے ڈیل کرنے میں ایکسپرٹ تھا۔ حفصہ نور سیکیورٹی سسٹمز کی اسپیشلسٹ تھی، جو ہر ڈیٹا کو سیف رکھنا جانتی تھی۔ یہ تینوں دوستیں عبداللہ کے گھر اکثر آتی، جہاں کرن ڈھیر سارے ان کے لیے کھانے بناتی۔ وہاں ان کی دوستی بشرا سے بھی ہو گئی۔ بشرا ان تینوں کے لیے اپنے ہاتھ سے اسپیشل چائے بناتی، اور جب بھی وہ تھک جاتی تو بشرا انہیں حسین موٹیویشنل باتیں کر کے ان کا موڈ فریش کر دیتی۔ وانیہ اکثر کہتی، عبداللہ، تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں بشرا جیسی بہن ملی ہے۔ 8 مہینے کی دن رات کی محنت کے بعد عبداللہ، وانیہ، مرہا اور حفصہ نور نے مل کر ایک نیا ڈیجیٹل سسٹم بنایا، جس کا نام انہوں نے سٹی گارڈ AI رکھا۔ یہ سسٹم شہر کے سمارٹ کیمروں کے ذریعے ایکسیڈنٹس اور ہر طرح کی سیکیورٹی کو آرام سے مانیٹر کر سکتا تھا۔ شہر کے سب سے بڑے ٹیک ایکسپو میں جب انہوں نے اس پروجیکٹ کو سنایا تو پورے ہال نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ گورنمنٹ اور بڑے انویسٹرز نے انہیں کروڑوں کا کانٹریکٹ آفر کیا۔ گھر پر جشن کا ماحول تھا۔ اقرا نے اس پورے سفر کی ایک پیاری سی ولاگ ویڈیو بنائی، جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ عامر صاحب نے خوشی میں شہر کے غریبوں میں مفت راشن بانٹا، کیونکہ بشرا نے ان سے کہا تھا، پاپا، خوشی تبھی مکمل ہوتی ہے جب کوئی غریب بھوکا نہ سوئے۔ لیکن اس کامیابی کے پیچھے ایک بہت بڑی مصیبت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ عامر صاحب کی کمپنی میں ایک مینیجر تھا، جس کا نام کاشف تھا۔ کاشف بہت ہی حسد کرنے والا اور لالچ سے بھرا انسان تھا۔ وہ عامر صاحب کا بزنس ہڑپنا چاہتا تھا۔ کاشف نے دیکھا کہ عامر صاحب اپنے بیٹے کے پروجیکٹ کی وجہ سے بہت خوش ہے۔ اس نے چالاکی سے کمپنی کے اہم فائنینشل ڈاکیومنٹس میں ہیر پھیر کی اور ایک جھوٹا فراڈ کا کیس بنا دیا۔ ایک صبح جب سب چائے پی رہے تھے، پولیس اور افسران ان کے گھر پہنچ گئے۔ کاشف نے فیک پیپرز کی مدد سے عامر صاحب کی ساری پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹس فریز کروا دیے۔ انہوں نے کہا، عامر صاحب،
आप पर करोड़ों के फ्रॉड का इल्जाम है। आमिर साहब ये झूठा इल्जाम और अपनी बरसों की इज्जत मिट्टी में मिलती देखकर बुरी तरह टूट गए। उनका दिल जख्मी हो गया और वो गहरी चिंता और उदासी में डूब गए। काशिफ ने उन्हें उनके ही घर से निकलवा दिया। आमिर साहब इस अचानक आई मुसीबत और झूठे इल्जाम की वजह से इतने उदास और परेशान रहने लगे कि उन्होंने चुपचाप अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और उन्हें शहर के एक सस्ते इलाके में एक छोटे से रेंट के फ्लैट पर ले गए। अपने बाप को इस हाल में देखकर बच्चों का दिल रो उठा। अब्दुल्ला पर भी झूठे चार्जेस लगाए गए, जिसकी वजह से उसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से बेदखल कर दिया गया। अब घर चलाने के लिए तीनों बहनों ने हिम्मत समेटी। वानिया, मिरहा और हफ्सा। नूर को जब पता चला तो उन्होंने उनकी मदद करने की कोशिश की, मगर काशिफ ने उन तीनों को भी कंपनी से निकलवा दिया और करियर तबाह करने की धमकी दी। मजबूरन वानिया, मिरहा और हफ्सा नूर को यूनिवर्सिटी के सस्ते हॉस्टल में शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि उनकी जॉब्स चली गई थी। मगर उन्होंने दिल में कसम खाई कि वो अब्दुल्ला और उसकी बहनों को अकेला नहीं छोड़ेंगी। इन दुश्वार और उदासी के दिनों में बुशरा ने अपने परेशान बाप, अपनी बहनों और भाई का हौसला बढ़ाया। उसने कहा, हम रोने से बेहतर है कि अपनी काबिलियत को अपनी ढाल बनाएं। आमना ने फ्लैट के छोटे से कमरे में बैठकर ऑनलाइन बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाना शुरू की। बुशरा, जो कि बहुत तमीजदार और सबक आमोज बातें करती थी, उसने और इकरा ने मिलकर एक ऑनलाइन डिजिटल शॉप शुरू की। इकरा ने अपनी वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी की स्किल्स यूज की और उन्होंने सोशल मीडिया पर द सिटी आर्टिसंस के नाम से एक ब्रांड बनाया, जहां वो लोकल फीमेल वर्कर्स के हाथ के बने कपड़े और होम डेकोर आइटम्स बेचते थे। बुशरा खुद उन गरीब औरतों के पास जाती, उन्हें इज्जत देती और उनके बनाए कपड़ों की ऐसी मार्केटिंग करती कि लोग उनकी सादगी और सच्चाई के दीवाने हो गए। इधर अब्दुल्ला ने हार नहीं मानी। वो हॉस्टल में वानिया, मिरहा और हफ्सा नूर से खुफिया तौर पर मिलता। उन चारों ने हॉस्टल के एक छोटे से कमरे में बैठकर काशिफ के फ्रॉड के खिलाफ झूठे पेपर्स और सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। एक रात हफ्सा नूर ने काशिफ के पर्सनल कंप्यूटर का ट्रैक निकाल लिया। उसने कहा, अब्दुल्ला, काशिफ ने सारे झूठे और असली डॉक्यूमेंट्स एक खुफिया फोल्डर में छुपाए हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें उसकी ऑफिस फाइल्स का एक्सेस चाहिए होगा। यहाँ पर वानिया और मिरहा ने एक प्लान बनाया। मिरहा ने भेष बदलकर एक नए क्लाइंट के रूप में काशिफ के नए ऑफिस में मीटिंग रखी ताकि वो उसे बातों में उलझा सके। वहीं वानिया ने चालाकी से ऑफिस के नेटवर्क से सारा डेटा कॉपी करने की तरकीब लगाई। हॉस्टल के कमरे में बैठी हफ्सा नूर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और सिर्फ 10 मिनट्स में काशिफ का सारा खुफिया डेटा डाउनलोड कर लिया। उस डेटा में साफ लिखा था कि आमिर साहब बिल्कुल बेगुनाह है और काशिफ ने बैंक के साथ मिलकर फेक सिग्नेचर्स और धोखाधड़ी की थी। अगली ही सुबह आमना और अब्दुल्ला ने शहर के सबसे बेहतर कानूनी इदारे से राब्ता किया। काशिफ कोर्ट में बैठा मुस्कुरा रहा था कि अब वो पूरी कंपनी का मालिक बनने वाला है। लेकिन तभी कोर्ट के दरवाजे खुले और अब्दुल्ला अपनी तीनों बहनों आमना, बुशरा, इकरा और अपनी तीनों दोस्तों वानिया, मिरहा, हफ्सा नूर के साथ दाखिल हुआ। उनके साथ उनके लॉयर ने अदालत के सामने वो सारे असली डिजिटल सबूत, बैंक की झूठी रिकॉर्डिंग्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए जो हफ्सा नूर और वानिया ने निकाले थे। जज ने सबूत देखते ही फौरन फैसला सुनाया।
काशिफ को 14 साल के लिए जेल भेज दिया गया और उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली गई। आमिर साहब और उनके बच्चों को उनका असली घर और बिजनेस पूरी इज्जत के साथ वापस मिल गया। आमिर साहब जब वापस अपने पुराने घर आए तो उनकी उदासी खुशी के आंसुओं में बदल गई। उन्होंने फखरिया तौर पर अपनी बेटियों और बेटे को गले से लगाया। बुशरा ने फौरन आगे बढ़कर वानिया, मिरहा और हफ्सा नूर का हाथ पकड़ा और कहा, पापा, अगर ये तीनों ना होती तो हम आज इस रेंट के फ्लैट से कभी ना निकल पाते। आमिर साहब ने खुश होकर अब्दुल्ला, वानिया, मिरहा और हफ्सा नूर को उनकी नई कंपनी नेक्सस डिजिटल लैब्स का पार्टनर बना दिया, जो अब पूरे शहर के लिए सबसे बड़ा बिजनेस हब बन चुका था। आमना ने कंपनी का सारा कंट्रोल संभाल लिया, जबकि इकरा का डिजिटल ब्रांड अब मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स तक पहुंच गया था। बुशरा ने शहर में एक बहुत बड़ा फ्री ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां आम और गरीब लड़कियों को मुफ्त बिजनेस स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग और स्टिचिंग सिखाई जाती थी, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वक्त गुजरता गया और पूरे शहर में इस परिवार की मिसालें दी जाने लगी। अब्दुल्ला और उसके बहनों ने साबित किया कि अगर परिवार में इत्तेफाक हो और दोस्त सच्चे हों, तो दुनिया की कोई बड़ी साजिश या गुर्बत आपको हरा नहीं सकती। काशिफ अब जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा अपनी मक्कारी पर रो रहा था, जबकि आमिर साहब और किरण अपने बच्चों की इस कामयाबी पर फख्र करते थे। पूरे शहर में अब उनकी दोस्ती, मेहनत और बुशरा की रहमदली के चर्चे थे। इस तरह बुराई का अंजाम बुरा हुआ और मेहनत, अक्लमंदी और बहन भाइयों के सिलसिले ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।